Hello everyone. How you all are doing? Hope you all are very fine. Today we will start our next topic, that is your harmonic function of a complex variables. We must know first of all what is an harmonic function. Okay, all of you know what is Laplace equation, that is del square phi by del x square plus del square phi by del y square is equals to 0 is called a Laplace equation. If any function that satisfy this equation, any function, whatever, that may be a complex function, that may be a real function, whatever, but if it satisfy this equation, this is Laplace equation, then we call this as a harmonic function. Okay. Suppose, for example, a function f of z is equals to u plus iv is an analytic function. Okay, f of z, that is a function of complex variable, is another complex variable u plus iv. Suppose it is given that it is an analytic function, and all of you know what is analytic function. It must satisfy the two criteria. The first criteria is your the partial derivative ux, uy, vx, vy all must be continuous. And what about the second criteria? That they must satisfy the Cauchy-Riemann equation. The Cauchy-Riemann equation are del u by del x is equals to del b by del y, and del u by del y is equals to minus of del b by del x. Now suppose we are considering the first equation only, del u by del x is equals to del b by del y, and differentiating this with respect to x. Del square u by del x square is equals to, you have del square v by del x del y. Similarly, differentiating the second equation, you will obtain del square u by del y square is equals to minus, here is a minus, so minus is as it is, then del square v by del x del y. Now by adding these two equations, this one and this one, adding these two equations, what will you obtain? This will be 0 and the left hand side will be del square u by del x square plus del square u by del y square is equals to 0. That means u satisfy the Laplace equation because we have shown that del square u by del x square plus del square u by del y square is equals to 0. Thus u satisfy the Laplace equation. If it satisfies the Laplace equation, then it is a harmonic function. So what you have taken first? First of all, we have considered that the function f of z, जो function हमने f of z is equals to u plus iv कंसीडर किया था, उसका रियल पार्ट u सिर्फ हमने देखा कि वो हार्मोनिक फंक्शन है. Similarly, we can also show that v is also harmonic. Okay, so which conclude that real and imaginary part. इसका मतलब अगर u भी हमने शो कर दिया हार्मोनिक, वैसे ही हम v को भी शो कर सकते हैं हार्मोनिक है. तो कोई भी एनालिटिक फंक्शन f ऑफ z इज इक्वल्स टू u प्लस आई बी अगर हमने लिया तो उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, दैट इज u and v, both must satisfy the Laplace equation and both are harmonic functions, and they both are called the harmonic conjugate of each other. That means u is the harmonic conjugate of v and v is the harmonic conjugate of u. If one is known to you, suppose आपको u given है तो आप v निकाल सकते हो. अगर आपको v given है तो आप u निकाल सकते हो, और u भी में से अगर कोई एक गिवन होगा तो आप फंक्शन f ऑफ z भी निकाल सकते हो. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. आपको कोई भी एक u और v में से गिवन होगा, इधर रियल पार्ट गिवन होगी या इमेजिनरी पार्ट गिवन होगी, और आपको f ऑफ z पूछा गया होगा फाइंड आउट करने के लिए. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, वी विल डिस्कस इट. This type of numericals may asked in your exam. In this case, just look at the question. Determine the analytic function whose real part is x cube minus 3xy square plus 3x square minus 3y square plus 1.
आपको क्या निकालना है, यहाँ पे रियल पार्ट गिवन है और आपको एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड निकालना है। मतलब आपको u दिया गया है और आपको एफ ऑफ जेड निकालना है। लेट फंक्शन एफ ऑफ जेड आप पहले तो कंसिडर करो, एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू u प्लस आई वी, जिसमें से आपको u दिया गया है एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 1। ओके, नाउ अगर हम इसी को पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में डिफरेंशिएट करते हैं, दैट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट डेल यू बाई डेल एक्स। सो वाई विल बी योर कांस्टेंट, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, दिस विल बी 3y स्क्वायर एंड दिस 6x, and we are differentiating with respect to x, so this is constant and this is also constant whose derivative are 0. Let us consider this as equation 2. Similarly u को फिर से आप विथ रिस्पेक्ट टू y में डिफरेंशिएट करो। जब आप y में डिफरेंशिएट करोगे तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 6xy, ये भी कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा माइनस 6y, ये तो कांस्टेंट है ही, इसका डेरिवेटिव भी 0 है। तो ये इसको कंसिडर कर लो इक्वेशन 3। आपने डेल यू बाई डेल एक्स और डेल यू बाई डेल वाई निकाल लिया। अभी आपको क्वेश्चन में क्या आपने कंसिडर किया है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू यू प्लस आई वी, जो कि हम कंसिडर करते हैं एक एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, सिंस एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक, सो ये जरूर सी आर इक्वेशन दैट इज कॉची-रीमन इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। अकॉर्डिंग टू कॉची-रीमन इक्वेशन डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू डेल भी बाई डेल वाई। आपके पास डेल यू बाई डेल एक्स है, तो इसी को हम, अब ये वाला पार्ट हमें पता है डेल यू बाई डेल एक्स, लेकिन हमें u की ज़रूरत है नहीं, u ऑलरेडी हमें गिवन है, हमें चाहिए v। सो डेल भी बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू दिस वन। ओके, तो आपको डेल भी बाई डेल वाई मिल गया। अगर इसी इक्वेशन को इक्वेशन 4 मानो ले लिया, इसी को आप पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y में इंटीग्रेट कर लोगे, क्योंकि ये डिफरेंशियल टर्म गिवन है। अगर आपको भी निकालना है, आप इसको y से इंटीग्रेट करो पार्शियली, मतलब x को कांस्टेंट मान के। नाउ इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 4 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, आपको क्या मिलेगा, देखो इसको इंटीग्रेट करते हैं हम, तो 3x स्क्वायर, ये कांस्टेंट ही है पूरा, तो इसको इंटीग्रेट y के रिस्पेक्ट में करोगे तो सिर्फ y आ जाएगा। फिर 3y स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन y क्यूब आ जाएगा, ये 6xy प्लस अनदर कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम लोग ऐड करते हैं, क्योंकि हम y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो x हमारा कांस्टेंट ही है, तो मैंने उस कांस्टेंट को सपोज फाई ऑफ x इसलिए कंसीडर कर लिया है। सपोज बिकॉज वाइल इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y वी ट्रीट x एज कांस्टेंट, हम x को कांस्टेंट मानते हैं वहाँ पे, तो मैंने कांस्टेंट के जगह पे फाई ऑफ x कंसिडर किया। ओके, इसको इक्वेशन भी 5 ले लो, भी आपने निकाल लिया, लेकिन भी में एक चीज़ आपको अननोन है। अब ये फाई ऑफ एक्स है क्या, एक्चुअली ये कांस्टेंट की वैल्यू क्या है वो आपके लिए अननोन है, तो इसलिए हमने इसको इक्वेशन 5 लिया। फिर हमारे पास दूसरा कॉची-रीमन इक्वेशन भी तो है, तो हम इसको क्या करेंगे, अब पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में डिफ्रेंशिएट करते हैं। इस भी को, जो भी तुम्हें मिला है उसको एक्स में डिफ्रेंशिएट करो और इक्वेट करो माइनस डेल यू बाई डेल वाई के साथ, क्योंकि ये वैल्यू आपको पहले से नोन है, डेल यू बाई डेल वाई हमने पहले निकाल रखा था। तो अब डेल भी बाई डेल एक्स तुम्हें क्या मिलता है, यहाँ से 3x स्क्वायर वाई, तो 6xy माइनस सो हियर v इज इक्वल्स टू दिस मच, देन डेल भी बाई डेल एक्स आपने निकाल लिया, डेल भी बाई डेल एक्स ये है, जिसमें आपका फाई ऑफ एक्स कांस्टेंट था तो उसका डेरिवेटिव भी फाई डैश एक्स है। सो आपको क्या मिला, माइनस डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू दिस मच, लेकिन डेल यू बाई डेल वाई आपको पहले से एक और कुछ मिला था, दैट इज माइनस 6xy माइनस 6y। आपका इक्वेशन 3 में से आप देखो, आपको ये मिला था डेल यू बाई डेल वाई का वैल्यू, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी राइट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए था। तो बच्चा बीच में कौन सा पार्ट अननोन है, फाई डैश एक्स, और फाई डैश एक्स का वैल्यू हमें कितना मिल गया, फिर इसका मतलब अगर ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाते हैं तो फाई डैश एक्स तुम्हारा 0 हो जाएगा। अगर फाई डैश एक्स 0 है तो फाई ऑफ एक्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कोई कांस्टेंट का ही डेरिवेटिव 0 हो सकता है ना, तो फाई डैश एक्स अगर 0 है तो फाई ऑफ एक्स हमारा कांस्टेंट, सपोज इसको आप C1 ले लो, कौन पूछू, 10 आपको u मिल गिवन था, v आपको मिल गया ये, देन फंक्शन f ऑफ z क्या आएगा, u प्लस आई वी, दैट इज योर f ऑफ z इज इक्वल्स टू
एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू यू प्लस आई वी। तो एफ ऑफ जेड ये हो गया, अब तुम्हारा u ये था और v ये मिल गया आयोटा इंटू वी। नाउ अगर हमें ये तो मिल गया फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई के टर्म में, लेकिन हमें इसको जनरली z के फॉर्म में निकालना होता है, एफ ऑफ जेड, क्योंकि फंक्शन क्या है, एफ ऑफ जेड, फंक्शन ऑफ z। तो हमें भी फंक्शन ऑफ z के फॉर्म में निकालने के लिए एक मेथड अप्लाई करना होता है जिसको बोलते हैं मिलने थॉम्सन्स मेथड। मिलने थॉम्सन्स मेथड में क्या करते हैं, हम x की जगह पे z पुट कर देते हैं, y की जगह पे 0 पुट कर देते हैं। तो इसी इक्वेशन में, इक्वेशन 6 में x में z पुट कर लो, y में 0 पुट कर लो, और देख लो तुम्हें क्या मिलेगा, फंक्शन f ऑफ z इज इक्वल्स टू एक फंक्शन ऑफ z के फॉर्म में मिल जाएगा, दैट इज z क्यूब प्लस 3z² प्लस 1 प्लस आयोटा इंटू c1। तो ये है आपका रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन। आपका ये इक्वेशन मिल गया f ऑफ z। आपको गिवन था क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन में आपको गिवन था ओनली u, रियल पार्ट, और आपने इमेजिनरी पार्ट भी निकाल पाए और फंक्शन को भी निकाल पाए मिलने थॉम्सन्स मेथड को अप्लाई करके। So hope all of you understand this method and it's helpful for you to solve this kind of numericals. Thank you. Have a great day.